बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ऐ मेरी आरज़ू। 50 साल 150 साल कम से कम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। लिटरली तुमने मुझे बुड्ढा डिक्लेयर कर दिया आज, मैं बता रही हूँ। मेरे ये खाली बस बर्थडे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है यार। तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा तुम्हें मिला तुम्हारी पिक्चर फ्राइडे अरे रिलीज हाँ हुई है यार, यार। ये एक्चुअली में सबसे बड़ा तोहफा था मेरे लिए। कल मुझे लगा कि मेरा खाली लाइफ बसा का आता। तो टायरिंग डेज होने वाला है, बट खत्म होने तक जो लोगों के मैसेज आने शुरू हुए। लोगों को बर्थडे पे कोई फिल्म देता है, कोई हीरो का हार देता है, तुम्हें पूरा मुल्क मिल गया। सोचो I know. पूरा मुल्क मिल गया तुम्हें। एंड वी वुड लाइक टू वेलकम Mr. Anubhav Sinha, please, the director of the film. Who is and responsible for the gift? yes, absolutely. And Prateek Babbar. जैसे आप लग रहे हो चश्मे बदूर। What a an interesting cycle from चश्मे बदूर to मुल्क with ऋषि कपूर से शुरू किया और ऋषि कपूर के, That's the common thing, right? है ना? And what मतलब 360 degrees in terms of the film. Yeah, that is true. That is true. A variety is the spice of life, ना? Yeah. From victim to lawyer. From victim to love. मेरी graduation हो गई है। है seriously? हाँ, इसके बाद जज हूँ मैं। ये क्या बात है? अच्छा, तो अमित जी से क्या सीखा लॉयर बन के? यार सीखा बस इतना कि इम्पैक्ट हो तो ऐसा। हाँ। ये सीखा नहीं, दिमाग में रखा था कि यार उनको कॉपी तो करने की मैं हिम्मत नहीं करूंगी, तो इतना कोशिश करूंगी इम्पैक्ट उनके आसपास का हो जाए तो भाई हम बहुत सक्सेसफुल है, वही कोशिश करेंगे। अच्छा, कि एक वर्ड में आप ऋषि जी को डिस्क्राइब कीजिए, एंड इट्स सो अनकैनी, ईच ऑफ देम यूजेस these two words, lovable, bully. That is आपको true. कितना bully किया? Actually, this is true. है ना? But I call him hot-blooded Punjabi man. I call him daddy, literally that. अनुभव आपको कितना बुली किया ऋषि जी ने? मुझे नहीं बोली। नहीं, इनको नहीं। हाँ, मैंने उनको पहले दिन बता दिया, मैंने आपके चाचा जी के साथ काम किया हुआ है, शमी जी के साथ। अच्छा। तो मेरा ऐसे थोड़ा ग्रेजुएशन हो गया। From such a sweet, lovable film like Tum Bin to such an explosive film like Mulk, because we must acknowledge, there is a very, very big religious divide in our country, which has been swept under the carpet. Thanks These for issues. saying it. No, I believe it. I believe it, and it's there for all to see. And generally we sweep these issues, you know. Community की बात तो फिर भी हो जाती है, पर religion को लेकर और खासतौर पे हिंदू-मुस्लिम, you know, relationships को लेकर बहुत कम फिल्में बनी हैं. Why this? Why did you feel this is important? I wanted to say what I've said. Right? It was just exploding inside my chest. Yeah. And there was no way I would not say it. Yeah. And so yeah, and thankfully one story happened which could accommodate things that I had to say. Yeah. And then I went ahead and I did it, you know, even at the risk of at times not being sucking and, you know, being verbose. But there are things that need to be said in words, so I said it in words. Yeah. Because your campaign, Bring it out. That was the idea behind getting elephant in the room in front. That's what we did. Prateek, also the fact that, you know, social media has polarized people even further and has given everyone that, you know, कि वो आप एक जरिया है जहाँ पर आप अपने दिल खोल कर बात कर सकते हो. All the hate, everything is coming out from all sides. So do you feel this film in some ways is going to be like a catharsis for that? I hope so. I truly hope so. I really hope so. But it will definitely resonate with everybody. You know, it will. There's no question about it. And it's a film about us, about our people, and about our surroundings, about the heartbreak, about the people being unfair. You know, it's about all of that. And you have a very dark character. I'm sure it would be resonating with a lot of. You've experienced a lot of darkness in your life, through your life, and now you must have found this film a very interesting way of, you know, putting it all into that. Sure, I didn't think of it in the beginning, but then it just kind of organically happened, if I may say. And yes, very, very, very close to my heart, this character and this film, and the entire film. Hey, cake cutting, chaliye jaldi se, without wasting any more time. We're going to be embarrassing you even more. Yeah, यार, please all the. किसने picture देखी किसने? Any देखिए, friends? कुछ और देखिए please. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tapsi. Happy birthday to you. Yeah, इसको बड़ा help का है. अभी नीचे वीडियो के लिए दे दो। वीडियो के लिए अभी हट जाओ फोटोग्राफर आगे बसा रह रहा था मैम सर वीडियो के लिए दोबारा एक्शन
आप काट देते हो बस खिला दो जरा। सर को खिलाए एक बार। नाम नहीं काटूंगी अपना। हाँ बस ठीक है खिला दो जरा। खिला हाँ तो नहीं अभी हम लोग को नहीं मिला है ना, फोटोग्राफर को मिला है। अच्छा आप लोगों को मिलाई हाँ नहीं, वीडियो को नहीं मिला। दोबारा खाना पड़ेगा सर आप हाँ। पति तापसी थैंक यू। थैंक यू। अरे बस ना, अरे इनसे तो आता ना। चलो फोटो ले लो मेरा, फोटो ले लो। जो भी करना पिक्चर पिक्चर देखने वाले कल हम लोग। बड़ी हिम्मत से हाँ जी चलिए तीनों को चाहिए ओके चलो बॉयज फोटो हो गया तो हट जाओ। ये फोटो ले तो बस जरा 5 मिनट। अरे ना आता तो वक्त में सोलो एक मिनट। हाँ थोड़ा इधर खाली बसा मैम, 1 मिनट थोड़ा वीडियो के लिए। ये बस रहा था, अरे बस रहा है। अरे बस चलो बस आना यार। बस सर की ले लो। भाई लाइट लगाओ ना पीछे। अनुज आराम से देना, तो जान दे। तो डबल होगा। अनुज जी, तापसी दूसरी बार आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यकीनन आप मानती है अब तक जो खबर दिल्ली से आ रही है, Silence, please. We're doing an interview here, please. अमूमन राजनीतिक खबरें आती हैं, लेकिन बॉलीवुड को लेकर, आपकी फिल्म को लेकर जो खबरें आ रही हैं बहुत पॉजिटिव नोट पे है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग ये कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म जरूर देखें। जी हाँ डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन? लोगों ने पसंद करना चालू कर दिया है, क्रिटिक पसंद कर रहे हैं लोग। सर क्या कहेंगे आप, तापसी क्या कहेंगे? यही तो हम कह रहे थे ना शुरू से, ये हर हिंदुस्तानी के लिए है पिक्चर। पता नहीं क्यों लोग हमारे को बोल रहे थे कि ये एक प्रो और एंटी सेक्शन और प्रो सेक्शन। हम शुरू से कह रहे थे ये इंडियंस के लिए पिक्चर है और सब हिंदुस्तानी इसको पसंद करेंगे। फाइनली एटलीस्ट हमारे मुंह से नहीं तो एटलीस्ट क्रिटिक्स और बाकी जर्नलिस्ट के मुंह से सुनने को मिला, तो अब तो विश्वास कर लें आई होप लोग हमारी बात पे। और हाँ, मेरे को तो बर्थडे गिफ्ट मिल गया मेरा कल, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि दिल्ली में कल स्क्रीनिंग हुई है मीडिया के लिए, तो वहाँ आप पत्रकारों से मिले होंगे, उनका क्या? नहीं, मैं पत्रकारों से नहीं मिला। उसके पहले कुछ गेस्ट की स्क्रीनिंग थी, उसमें मिला लोगों से। सबको बहुत अच्छी लगी यार। तो उस वक्त जब लोग तारीफ कर रहे होते हैं उसको स्टार नहीं बोल रहे होते हैं। पर जब मैं दिल्ली से 10:30 की फ्लाइट लेके रात को करीब 12:30-1 बजे लैंड हुआ इधर, तो सागर मेरे पीछे खड़ा था। सागर मेरा ईपी है। तो उसने बोला सर रिव्यूज़ तो बहुत कमाल हैं। उसके फ़ोन पे मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर उसने मुझे एक एक करके रिव्यूज़ दिखाने शुरू किए, 5 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार। तो हमको पता चला कि क्योंकि उस वक्त बॉम्बे का भी प्रेस शो ख़त्म हो चुका था और दिल्ली का भी ख़त्म हो चुका था, तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए। लोगों के बीच में जो बातचीत सुन रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। अब लोग थिएटर तक जाएं और लोगों को फिल्म पसंद आए और लोग दूसरों को बोले जाके देखने को, जैसे आपने कहा कि सब हमारा हिंदुस्तानियों काम को हो देखना गया है। चाहिए।
तो अब हम आपका- शोर मचाते रहेंगे लगातार जब तक आप लोग थिएटर में नहीं जाते। What's your take on that? You know, the response is really positive all around the film. यस, सारी फिल्में भूल जाओ, मुल्क देखिए। You're pointing at Fanne Khan. बिल्कुल are- नहीं, सारी दुनिया के सारी फिल्में भूल जाओ। हॉलीवुड की भी भूल जाओ यार। हॉलीवुड के सारे जितने पिक्चरें आ रहे हैं भूल जाओ, जाके मुल्क देखिए। नहीं, on a serious note, as you can see, the responses are so positive. We're getting such great reviews. इतने अच्छे reviews मिले, 5 stars मिल गए, बड़े-बड़े critics से 5 stars मिल गए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। If I can name one, Mr. Subhash Keja has said this is a must watch for every Indian. हर एक हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी ही चाहिए, ये रेजोनेट होगी सबके साथ। ये कहानी हमारे बारे में है, फिल्म रादर ये हमारे बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे हालातों के बारे में है। और बिल्कुल मैं ये I absolutely think everybody needs to watch this film. Every Indian needs to watch this film. Yes. Pratik, since your Yes. character was very dark and it was challenging kind of stuff, तो ऐसा हुआ था कि shooting के बाद भी कई बार आप you were in your character and someone needed you to bring you back. ऐसा कुछ हुआ था? Somebody has मुझे ना ये question पूछा गया है और it's a बहुत ही interesting thought है। मैंने कभी ये सोचा नहीं और मैं you know I honestly I'm not the best person to judge this और मैं फिल्म से फिल्म जंप हो रहा हूँ, मैं सेट से सेट में मैं कूद रहा हूँ लिटरली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या मैं एक्चुअली उस कैरेक्टर में हूँ, मैं कहीं दूसरे कैरेक्टर में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जब मैं घर जाता हूँ मुझे बस सोना होता है, बस ये मुझे समझ आता है। बहुत काम कर लिया, सोना है। Okay, so after Baghi 2, now it's Mulk. So Yes. can we say that you're gonna be the next bad boy? Why bad boy? Why not? People love A that. good Why, actor. sure, yes. Why not a good actor? Why not a Indeed for that, but still, just yes? Are you open up for such great Sure, character? absolutely. I don't want to be. I mean that's what. If you want to call me a bad boy, why not call me one? I gracefully accept it and embrace it. But yes, I would love to play great characters. Yes, it should just it should move me. You know, it should move me, and I think I should resonate with the character. Absolutely, why not? Great. Okay, अनुभव आपसे और तापसी से जानना चाहूँगा क्योंकि फिल्म बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे है, बहुत सेंसिटिव किसी मुद्दे को उठाती है। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह के पैगाम देने की कोशिश आपने की, जहाँ भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए। We want the film to be tax free. बहुत अच्छी बात है अगर टैक्स फ्री हो जाए तो। मुझे एक्चुअली किसी क्रिटिक ने बोला कि मैं अपने रिव्यू में लिखने वाला हूँ, लिखा है शायद, लिख दिया है कि हाँ कहीं तो मुझे ऐसे, मैं इतने सारे फोन्स पे रहा हूँ कल से लेके आज तक ना कि मैं सब सारे फोन घुस गए हैं दूसरे के अंदर। तो कहा कि टैक्स, मेरे तब तक दिमाग मेरे थॉट नहीं आया था, बट टैक्स फ्री हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हार्मनी की बात करती है, क्योंकि भाईचारे की बात करती है। तो अब इसका फैसला कौन करता है मुझे मालूम नहीं है, तो जो भी करते हैं मैं उनसे आपकी बात उन तक पहुंचाता हूं विद माय एंडोर्समेंट कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। Okay, तापसी, what's your take on that? क्योंकि एक अलग पैगाम देती है फिल्म। जी हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा मतलब लगता तो है सब। मेरा बेसिकली आइडिया टैक्स फ्री जब बोले तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। अगर वो टैक्स फ्री करके हेल्प होगा ये होने में तो ऐसा हो जाए तो अच्छा लगेगा। बट हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। सिर्फ बॉक्स ऑफिस, ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस, इट विल हेल्प ऑल द इंडस्ट्री, बट मोर देन दैट इट विल हेल्प यू एंड मी फॉर लॉन्गर रन इन लाइफ आई फील। अनुभव आपसे जानना चाहूँगा, इतनी खिलाफतें, इतनी कंट्रोवर्सी, इतने विवाद हुए फिल्म को लेकर, आप कितना रिलैक्स महसूस करते हैं कि फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने कबूल किया कि जो आप कहना चाह रहे थे? यूए सर्टिफिकेट दिया है यार, वो वैसी नकली फिल्म ही नहीं है। अलग अलग किसी भी बात को लेके, और डू यू एग्री विद दिस कि फिल्म मेकर या बॉलीवुड हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं? कोई धर्मगुरु उठ के चले आते हैं, कोई पार्टी उठ के चली आती है पॉलिटिकल की, भाई आप ये करिए और ये ना करिए। हाँ, जिसको नाम कमाना होता है वो बॉलीवुड को गाली बकने लगता है, वो तो है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। जिसको नाम कमाना है, जिसको ऐसा टीवी पे इंटरव्यू देना है, वो आ जाते हैं। वो चल भी रहा था, पर मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं था कि मुझे मालूम था मैंने क्या फिल्म बनाई है। मैंने किसी के खिलाफत में फिल्म नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ प्यार की फिल्म बनाई है। तो बीच बीच में मजाक में मैं कहता भी हूँ कि मुल्क इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बट अनुभव सर, आपसे एक सवाल है, डोंट यू थिंक इट्स फिल्म का स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो जहाँ पे वो अपनी कहानी बेझिझक विद फ्रीडम सुना सके, बता सके? क्योंकि जब भी कुछ होता है, लाइक उनके अगर क्वेश्चन को ऐड करें,
विवाद सबसे पहले खड़े हो जाते हैं. So what's it take? Do you think that डिस्कशन इज गुड ना. हाँ, विवाद मतलब बातचीत. एज लॉन्ग एज अच्छी बातचीत हो तो वो अच्छा है ना. इस किस्म के मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हम लोग. हमने धारणाएं बना ली हैं, हमारे पूर्वाग्रह है, हमारे प्रेजुडिसेस हैं, और वो बहुत पुराने हैं, वेल सीमेंटेड इनसाइड आवर डीएनए. तो अगर हम बातचीत शुरू करेंगे तो फिर वो सीमेंट हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा ही, मतलब कोई चांस नहीं है कि ना हिले. So do you think it has started? आई होप सो. आई रियली होप सो. आई होप सो. बस लास्ट क्वेश्चन. बना दियो. इरफान खान की कारवा और फन्ने खान अनिल कपूर सर की रिलीज होगी तो एक अनवांटेड तरह का कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सुनना चाहते हो तुम? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे सवाल में कुछ बात है. तुमको कुछ चाहिए. क्या चाहिए बोलो. किसको किसकी गाली देनी, किसकी बुराई करनी है? अरे यार, 1000 फिल्में बनती है साल में, हर हफ्ते 2-2, 3-3 फिल्में आएंगी. हम लोग दोस्त हैं, इरफान दोस्त है, अनिल दोस्त हैं, उनकी पिक्चर आ रही है, उनको शुभकामनाएं. 3 लोग साथ में पिक्चर आ सकती है, उसको लेके क्या कंट्रोवर्सी ढूंढ रहा है? ओके अनमोल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे. जो सिनेमा आपने इससे पहले किया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग किया जो सिनेमा आप करते हैं. सत्यवचन. I agree with this, even you agree with this. It was an intentional effort to break the image what you have done in नहीं, और it does पिक्चर बना रहा था, इमेज थोड़ी बना रहा था. वो कहानी अच्छी लगी, वो बात कहने की जरूरत महसूस हुई तो बना दी. और वो कहानी इस तरीके से बननी थी, 10 उस तरीके से बननी थी, रावण उस तरीके से बननी थी. हर फिल्म की, हर कहानी की का अपना परिधान होता है, उसके अपने कपड़े होते हैं. इस कहानी के ये कपड़े हैं. थैंक यू. प्लीज मूवी देखिए. प्लीज फिल्म देखिएगा. चलो लेट्स गो. चलिए.